A very warm good afternoon to one and all present here. It's our pleasure to welcome you all on the last session before the valedictory session, which will start at 5 p.m. today. This is the last session, and we have been joined by our expert speaker, Professor Dharamveer Mahajanji. It's my pleasure to welcome sir on behalf of Department of Sociology, NAS College Meerut, and all the organizing partners. Now I request Dr. Moni to please present a brief profile of Professor Dharamveer Mahajanji. Actually, the voice was not voice was not very clear. I'll request Professor Mahajan to please speak on, sir. No problem. There was some net issues from your side, Moni. Your voice is not audible. No problem. I'll request sir to please take over now. Thank you.
Thank you very much. Good afternoon to all the participants. I am going to speak on art of data collection. Data collection is very important part of research. So let me start at what stage data collection comes. I am not going into detail as I did last time. Some of the participants may be common that you start your research with a title and broad aim of research. As soon as your aim of research is clear, then you go for statement of problem, clearly stating what you want to do. And then you have to review the relevant literature, which is called overview of literature or review of literature, whatsoever you may call it. Then comes conceptual framework. You have to clarify all the concepts you have stated in statement of problem. And then comes the next step, which is research questions and hypothesis. You have to state clearly which questions you are going to answer, and if you have formulated some hypothesis, what are they? Then comes research methodology, in which you must be clear about the coverage, what is the universe. You must know what is sampling. And once the universe and sampling is clear, now comes the stage of data collection. इसमें मैं आई एम टेकिंग लिबर्टी टू स्पीक बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश. मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डेटा कलेक्शन 7वां स्टेप है रिसर्च में, जो मैंने अभी बताए हैं. लेकिन जैसे ही आपने अपने रिसर्च का टॉपिक सोच लिया है और एक ब्रॉड एम के अनुसार एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बना ली है, इसी स्टेज पर आपको सोचना होगा कि जो आप स्टडी करने जा रहे हैं, क्या उस पर डेटा कलेक्ट करना संभव है? क्या कोई ऐसी तकनीक उपलब्ध है जिससे जो क्वेश्चंस आपने रेज किए हैं, जिनको आप रिसर्च के माध्यम से जिनका उत्तर देने जा रहे हैं, क्या कोई ऐसी प्रेवलेंट रिसर्च टूल है जिससे आप डेटा कलेक्ट कर पाएं? और अगर हाइपोथेसिस बनाए हैं, उसमें आप दो वेरिएबल्स में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जानना चाहते हैं, तो उसमें क्या जो टूल आप बनाने जा रहे हैं, या जो टूल आप बनाएंगे डेटा कलेक्शन की स्टेज पर, क्या उसमें आप कॉम्पिटेंट हैं? क्योंकि उसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च चाहिए. इसे आपको पहले ही सोच लेना है. अगर आप इसे पहले नहीं सोचोगे तो क्या होगा, जब आप डेटा कलेक्शन पर आओगे तो लगेगा कि मैं कहां फंस गया, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था, कौन सी टेक्निक अपनाऊं. जो टेक्निक मेरे दिमाग में थी, जो मैंने सोच रखी थी, वो तो इस प्रॉब्लम के लिए सूटेबल नहीं है. इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले से ही, जैसे ही आप रिसर्च के प्रारंभिक अवस्थाओं में हैं, यू हैव टू वेरी क्लियर about the problem and the possible tools available to collect data. चलिए मैं इसके आपको एक दो उदाहरण देता हूं. मान लीजिए आप
वुमेन एम्पावरमेंट की स्टडी करना चाहते हैं। आजकल नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण बड़ा करंट टॉपिक है। अब आप के दिमाग में कहीं ऐसा है कि जो उच्च शिक्षा है वो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण में सहायक है, और आपने इस आइडिया को सामने रखकर जो अपनी प्रॉब्लम बनाई है, उसी स्टेज पर आपको सोचना होगा कि इस पर जो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है, मैं डेटा कैसे कलेक्ट करूंगा। जो शिक्षित महिलाएं जिनको मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल होगा एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, अगर मैं सभी शिक्षित महिलाएं ले लूंगा और मुझे पता चल भी जाए कि उनमें एम्पावरमेंट हो रहा है, तो मैं कैसे कहूंगा कि शिक्षा से हो रहा है। हो सकता है वो उनकी एम्प्लॉयमेंट से हो रहा है, हो सकता है कोई और थर्ड फैक्टर हो जो मेरे दिमाग में ही नहीं है। इसलिए पहले से सोचिए कि डेटा कलेक्शन में मुझे कुछ महिलाएं सॉरी ऐसी भी रखनी है who are comparatively less educated। अब आप देखिए एक दूसरे एग्जांपल लीजिए, पंचायती राज एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इस पर इतनी मशरूम रिसर्च हुई है कि जितनी भी आप सरफेस करेंगे आपको हजारों वर्क इस पर दिखाई देंगे। उसमें आपको क्या करना है, अब महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण हो गया पंचायती राज पर। आपके दिमाग में कहीं है कि जो पंचायत में महिला चुनी जाती है और जब वो अपने कार्यकाल में काम करती है तो उसका मेंबर बनने से, प्रधान बनने से, पंच बनने से, सरपंच बनने से एम्पावरमेंट होता है। अब इसी स्टेज पर आपको सोचना है कि क्या केवल जो पंचायत की मेंबर्स या प्रधान हैं उनका डेटा कलेक्ट करके मैं इस प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा कि पंचायती राज से महिला सशक्तिकरण हो रहा है। मान लीजिए हो भी रहा है पंचायतों के मेंबर का या प्रधान का, आप कैसे कहेंगे कि ये पंचायती राज से हो रहा है? हो सकता है उनकी शिक्षा की वजह से हो रहा हो सकता है उनकी फैमिली बैकग्राउंड से हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि इसी प्रारंभिक स्टेज पर आपको निर्णय ले लेना है कि मैं केवल पंचायत में जो मेंबर्स और प्रधान, पंच, सरपंच हैं उन्हीं का अध्ययन करूंगा, जहां एक कंट्रोल सैंपल भी रखूंगा जो कि ना तो मेंबर हैं, ना प्रधान है, ना पंच है, ना सरपंच है, बट दे कम फ्रॉम दी सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अगर कंट्रोल ग्रुप है, दूसरा आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, तो हो सकता है प्रोबेबली अगर दिमाग में है मैं इन दोनों से डेटा कलेक्ट करूंगा तो हो सकता है कि आप ज्यादा अच्छी तरह से शुरू में ही जो डिफिकल्टी आपकी आने वाली है उसको उसी स्टेज पर सॉल्व कर ले। डेटा कलेक्शन आप सब जानते होंगे एक मैथोडिकल प्रोसेस है of gathering and analyzing specific information to provide solutions to relevant questions and evaluate the results। इसकी नीड क्या है? अंडरलाइंग नीड फॉर दिस डेटा कलेक्शन इज टू कैप्चर क्वालिटी एविडेंस। कौन सा? ऐसे नहीं कि जो भी आ रहा है, जो भी सामने है, आपका क्वालिटी एविडेंस आपको चाहिए
और क्वालिटी एविडेंस का क्या मतलब है? विच इज फैक्चुअल, विच इज ओरिजिनल, विच इज रिलायबल, और जिसके आधार पर आप इन्फ्रेंसेस ड्रा कर सकते हैं, और अगर कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन ले सकते हैं। अब selection of best data collection tool is necessary for achieving the set of objectives or answering the questions raised. अब सब कुछ हो गया, अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे किस प्रकार के डेटा की, किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है जिसे मैंने संकलित करना है। और आप सब जानते हैं कि डेटा दो प्रकार का है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। The core forms of in which data can be collected are primary and secondary data. Primary data is collected by the researcher through first-hand sources, and the secondary data is collected by an individual other than the user. जो रिसर्चर है वो सेकेंडरी डेटा नहीं कर रहा, जिसने इसे इस्तेमाल करना है वो नहीं कर रहा, कोई दूसरा व्यक्ति ने करा हुआ है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा, अगर आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो फिर मैं एक किताब आपको बता रहा हूं, बहुत ही अच्छी किताब है, पीटर एच मन की मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी। इसमें उन्होंने प्राइमरी डेटा कलेक्शन और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, इन दोनों की टेक्निक्स का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। अब आइए पहले प्राइमरी डेटा कलेक्शन की बात करते हैं। प्राइमरी डेटा कलेक्शन बाय डेफिनेशन इज गैदरिंग ऑफ रॉ डेटा कलेक्टेड एट द सोर्स, जहां पर सोर्स है। अगर आप गांव का अध्ययन कर रहे हैं तो गांव सोर्स है, अगर आप किसी ट्राइब का अध्ययन कर रहे हैं तो ट्राइब सोर्स है, अगर आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स का अध्ययन कर रहे हैं तो स्टूडेंट सोर्स है। जहां पर भी आप अध्ययन कर रहे हैं उस सोर्स से कलेक्ट किया जाता है प्राइमरी डेटा। इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द ओरिजिनल डेटा बाय रिसर्चर हिमसेल्फ। और प्राइमरी डेटा जो है, जो कलेक्शन है, वो क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च, इन दोनों के लिए कलेक्शन अलग अलग है। जो टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन इन द क्वालिटेटिव रिसर्च ऐसे हैं जो डू नॉट इन्वॉल्व नंबर्स, आर डिड्यूस्ड थ्रू मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इनमें संख्याओं की आवश्यकता नहीं है, दे आर नॉन क्वांटिफाइएबल। और इसकी एग्जांपल क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च की? अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चनेयर, इन डेप्थ इंटरव्यू, ऑनलाइन फोरम्स, वेब सर्वे चैट्स, फोकस ग्रुप डिस्कशन, केस स्टडी, ओरल हिस्ट्री, नैरेटिव्स, लाइफ हिस्ट्री, जेनियोलॉजी, इन सब टूल का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऑल दीज टूल आर हेल्पफुल इन क्वालिटेटिव रिसर्च। अब आइए क्वांटिटेटिव रिसर्च पर। क्वांटिटेटिव रिसर्च methods are presented in numbers and require a mathematical calculation. An example would be the use of questionnaire with close-ended questions to arrive at figures to be calculated mathematically. और इसमें क्वांटिटेटिव जो कि मेथड है, आपको हो सकता है मीन, मोड, मीडियन
और स्टैटिस्टिकल टेक्निक ऑफ कोरिलेशन रिग्रेशन की भी आवश्यकता पड़े। अब मैंने आपको बताया कि अगर प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है तो क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए अलग है, क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए अलग टूल है। अगर हम सेकेंडरी डेटा की बात करते हैं तो सेकेंडरी डेटा कलेक्शन इज रेफर टू एज गैदरिंग ऑफ सेकंड हैंड डेटा collected by an individual who is not the original user। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है वो रिसर्चर नहीं कर रहा, हो सकता है कि किसी और ने करा है और उसका इस्तेमाल कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। और कहाँ एग्जिस्ट करता है? हो सकता है पब्लिश्ड बुक्स में हो सकता है जर्नल्स में हो सकता है ऑनलाइन जो पोर्टल हैं हमारे उसमें हो। अब आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि अगर मैं प्राइमरी डेटा कलेक्ट करता हूं तो उसकी क्या मेरिट होगी मेरी प्रॉब्लम के हिसाब से, और क्या मेरी प्रॉब्लम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने से सॉल्व हो जाएगी। इन दोनों का निर्णय आपको लेना बहुत आवश्यक है। अब आप देखिए प्राइमरी डेटा मैंने बताया ये तो इन्वेस्टिगेटर द्वारा फील्ड सिचुएशन में कलेक्ट किया जाता है, और जो सेकेंडरी डेटा है वो रिटन डॉक्यूमेंट्स जो लाइब्रेरी में, वेब में, सर्चिंग पोर्टल है, न्यूज़पेपर हैं। प्राइमरी डेटा इज मोर ओरिजिनल एंड रिलायबल। जो सेकेंडरी डेटा है वो इट इज नॉट ओरिजिनल, इट इज लेस रिलायबल। और सोर्सेज या टूल्स कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिया कि अगर आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं तो आपको जो टूल हेल्प करेंगे ऑब्जर्वेशन, एथनोग्राफी, इन डेप्थ इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशन, केस स्टडीज, ओरल हिस्ट्री, नरेटिव, लाइफ हिस्ट्री, जेनियोलॉजी। और अगर आप सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं तो रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बॉडीज, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पब्लिश स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स में भी देखिए आपके पास ह्यूज डेटा है। एक तो एनएसओ जो नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कलेक्ट किया जाता है, जिस पैमाने पर एनएसओ करता है उस पैमाने पर आप नहीं कर सकते। अगर वो डेटा अवेलेबल है ऑलरेडी और आप उसका इस्तेमाल करने की स्थिति में हैं तो गो फॉर सेकेंडरी डेटा अगर आपकी प्रॉब्लम परमिट कर रही है। दूसरा है एनआरसीबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इनका डेटा आपको ये हर साल क्राइम इन इंडिया पर पूरा एक फुल फ्लेज किताब एक अपनी वेबसाइट पर डालते हैं। पहले कभी जो इनकी रिपोर्ट हुआ करती थी एनसीआरबी की, दैट वाज ओनली फॉर पुलिस पर्सोनल। बाद में लगा कि भाई नहीं, इन रिपोर्ट्स को तो रिसर्चर को भी चाहिए। मुझे ध्यान है कि कोई 20-22 साल पहले जब मुझे इसकी जरूरत पड़ी थी तो आई हैव टू बोरो इट फ्रॉम ए पुलिस ऑफिसर। नाउ इट इज रेडिली अवेलेबल इन वेबसाइट। गो टू एनसीआरबी वेबसाइट और उसमें आपको मिलेगा कि आप क्या ढूंढना चाहते हैं। यू वांट डेटा ऑन सुसाइड्स, you want data on crime, you want data on accidental deaths, you want data on deaths in police custody। आपको क्या चाहिए? फिर आपके पास सेंसस रिपोर्ट्स हैं। सेंसस रिपोर्ट्स में भी आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक है, वो डिस्ट्रिक्ट गैजेटेरियर है। जो डिस्ट्रिक्ट गैजेटेरियर है
उसमें डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है. इफ दैट इज अवेलेबल एंड दैट इज हेल्पफुल फॉर योर प्रॉब्लम, गो फॉर दैट. उसके बाद जर्नल्स हैं, बिब्लियोग्राफी हैं, वेबसाइट्स हैं. अगर आप मनी एंड टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो नेचुरली प्राइमरी डेटा में पैसा भी ज्यादा लगेगा कलेक्ट करने के लिए, समय भी ज्यादा लगेगा. सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के लिए पैसा भी कम लगेगा, समय भी कम लगेगा. अब है ऑथेंटिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वेरिफिकेशन पॉसिबल है? प्राइमरी डेटा में पॉसिबल है, सेकेंडरी डेटा में पॉसिबल नहीं है. जो डेटा आपने किसी रिपोर्ट से लिया है, अगर आप चाहें कि मैं उसे ऑथेंटिकेट कर लूं तो उसके लिए आपके पास कोई मेथड नहीं है. और अगर प्राइमरी डेटा किसी ने किया है, मानो कोई कहता है कि मैंने किसी नगर में किसी कॉलेज की शिक्षित महिलाओं का अध्ययन किया है, वो फॉर एजुकेटेड वुमेन ऑफ ए college, similar college, and see if the results are in line with the results already available in this study which you want to verify. अब your choice between primary data collection and secondary data collection depends on, किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ योर प्रॉब्लम, स्कोप ऑफ योर प्रॉब्लम and area of your research as well as aims and objectives of your research. अब आइए टूल्स पर, जो आज का मेन टॉपिक है टूल्स का, मैं उस पर आता हूं. अब बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर डेटा कलेक्शन एंड रिसर्च. मैंने आपको बताया कि प्राइमरी डेटा क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है. इसलिए क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करना है तो उसके टूल्स एंड टेक्निक्स अलग हैं. अगर क्वांटिटेटिव करना है उसके टूल्स एंड टेक्निक्स अलग हैं. क्वालिटेटिव में मैंने आपको बताया पहले भी कि ऑब्जर्वेशन, केस स्टडीज, इन डेप्थ इंटरव्यूज, group discussions, ethnography, oral history, narratives and life history, genealogy, ये कुछ टूल ऐसे हैं जो आपको क्वालिटेटिव प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में सहायक हैं. अब आइए मैं जल्दी से आपको इनमें से कुछ प्रमुख जिनका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है उनके बारे में बता दूं. पहले है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन. आप देखिए अवलोकन जो है, आपने अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी की कोई किताब पढ़ी है तो उसमें आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि एक्यूरेट वाचिंग एंड नोटिंग ऑफ फिनोमेना एज दे अकर इन नेचर इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन. अब कैसे नोट करना है? इट implies the use of eyes rather than of ears and voice. इसमें आंखों का प्रयोग कानों और वाणी से ज्यादा किया जाता है. फिर आपने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है उसके बारे में भी देखा होगा कि science begins with observation and must ultimately return to observation for its final validation. गुड एंड हैट ने कहा था क्योंकि साइंस बिना ऑब्जर्वेशन के पॉसिबल नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा था कि इसकी शुरुआत भी ऑब्जर्वेशन से होती है और जब आप रिजल्ट वैलिडेट करेंगे एंड अगेन यू हैव टू गो फॉर ऑब्जर्वेशन. लेकिन ऑब्जर्वेशन हाईली ऑब्जेक्टिव टेक्निक होने के बावजूद, ऑब्जेक्टिव टेक्निक क्यों है? आपने कहावत सुनी है, देखकर ही विश्वास होता है.
सीइंग इज बिलीविंग। अगर कोई आपको कुछ कहता है, कोई भी ऐसी चीज जो अनइमेजिनेबल है, तो आप कहेंगे कि भाई ऐसा तो संभव ही नहीं है, मानो वही चीज वो आपको दिखा दे, देन यू हैव टू एक्सेप्ट, क्योंकि वो आपके सामने है, इसलिए ऑब्जेक्टिव है। बट इट इज हाईली सब्जेक्टिव। क्यों हाईली सब्जेक्टिव है, मैं इसकी आपको अनेक उदाहरण दे सकता हूं। अगर आप 3 या 4 रिसर्च स्कॉलर्स एक साथ अगर हम उन्हें कहें कि भाई किसी गांव में जाओ या किसी फेस्टिवल में जाओ या किसी रिलीजियस सेरेमनी में जाओ और आपको कुछ नहीं करना, किसी से नहीं बात करना, यू हैव टू ऑब्जर्व, और उसे ऑब्जर्व करके पूरा दिन आप वापस आ जाइए। अब वापस आने के बाद मैं उनसे पूछता हूं, तीनों से, कि आपने क्या देखा। आप हैरान रहेंगे, तीनों का उत्तर एक जैसा नहीं होगा। जो पहले अनुसंधानकर्ता ने देखा है, हो सकता है वो दूसरे ने ना देखा हो, और जो दूसरे ने देखा है वो पहले ने ना देखा हो, और जो तीसरे ने देखा है वो पहले और दूसरे ने ना देखा हो। इवेंट एक ही है, लेकिन उनको देखने का जो नजरिया है, जिसे हम पर्सपेक्टिव कहते हैं, व्यक्ति वही देखता है जो उसे पसंद है। उसने अपनी पसंद के अनुसार उसमें जो देखा मुझे बता दिया, दूसरे ने जो देखा वो मुझे बता दिया, तीसरे ने बता दिया। अब इसमें ऑब्जेक्टिविटी कहाँ है? अब ऑब्जेक्टिविटी का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा आपको आगे। अब ऑब्जर्वेशन आप देखिएगा कि कितने तरह की है। इसका कुछ लोगों ने कहा कि भाई जो तीनों ने अलग अलग देखा तो वो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन थी, हम ग्रुप ऑब्जर्वेशन करते हैं। और ग्रुप ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे, हम क्लैश नहीं करते। उसमें एक रिसर्चर सोशियोलॉजी का रखते हैं, एक इकोनॉमिक्स का रखते हैं, एक हिस्ट्री का रखते हैं, एक पॉलिटिकल साइंस का रखते हैं, एक एंथ्रोपोलॉजी का रखते हैं। लेट अस मेक ए टीम ऑफ ऑब्जर्वर्स फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स। उससे क्या होगा कि आपको सारे पर्सपेक्टिव एक साथ जब आप उनको सिंथेसाइज करेंगे, तो जो सोशियोलॉजी वाले ने देखा है, जो इकोनॉमिक्स वाले ने देखा है, जो एंथ्रोपोलॉजी वाले ने देखा है, वो आप एक जगह सिंथेसाइज कर सकते हैं। आप ऑब्जर्वेशन को, अगर आपने मेथोडोलॉजी की किसी किताब में पढ़ा है, तो 2 तरह की ऑब्जर्वेशन है, सिंपल एंड सिस्टमैटिक। सिंपल को अनकंट्रोल्ड भी कहते हैं और सिस्टमैटिक को कंट्रोल्ड भी कहते हैं। जो सिंपल ऑब्जर्वेशन है वो केयरफुल स्क्रूटनी ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस, मेकिंग नो अटेम्प्ट टू यूज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रिसीजन आर टू चेक फॉर एक्यूरेसी ऑफ द फिनोमेना ऑब्जर्व। इसमें हम कोई चेक रखने का प्रयास नहीं करते हैं सिंपल ऑब्जर्वेशन में, जो साधारण अवलोकन कहलाता है। और अगर आप सिस्टमैटिक या कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हो, तो उसमें क्या करना है, आपको 2 तरह से कंट्रोल रख सकते हो आप। एक तो कंट्रोल ओवर सोशल फिनोमेना, और दूसरा कंट्रोल ओवर ऑब्जर्वर, अपने आप पर। जहां तो आप अपने आप पर नियंत्रण रखें, जहां उस सामाजिक घटना
उस सामाजिक परिस्थिति जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं उस पर कंट्रोल रखें। टू कंट्रोल ए सोशल फिनोमेना इज इम्पॉसिबल इन सोशल साइंसेस। तो एक तो रूल आउट हो गया, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सोशल फिनोमेना डू अकर विदाउट एनी कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल्स। एक ही रास्ता बचा है कि आप इतनी प्लानिंग करें, प्री प्लानिंग, कि आपको क्या क्या देखना है। अगर आप पहले से एक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बना लें, वो पॉइंट्स लिख दें कि मुझे फील्ड में मैं जब जाऊंगा तो मुझे क्या क्या देखना है, तो वो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन हो सकती है। लेकिन सोशल फिनोमेना पर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब जो सिंपल ऑब्जर्वेशन है वो 3 प्रकार की है: पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड क्वाजी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन आप जानते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी में ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। दिस प्रोसीजर इज यूज्ड when the investigator can disguise himself as to be accepted as a member of the group। अगर रिसर्चर बिना अपना उद्देश्य या लक्ष्य बताए बिना किसी समूह की सदस्यता प्राप्त कर सकता है, तो आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। दिस इज वेरी डिफिकल्ट। और जिन लोगों ने शुरू में इसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को शुरू करा था, आप हैरान रहेंगे, 6 महीने लग गए केवल उस ग्रुप में टू बी एक्सेप्टेड एज मेंबर। किसी ने कहा मैं कवि हूं, किसी ने कहा मैं नेचर का प्रेमी हूं, किसी ने कहा मैं संगीतकार हूं। किसी और रूप में आप किसी अनजान समूह में मान्यता प्राप्त करके उस समूह का एक हिस्सा बन जाएं, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसलिए इसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को पीटर एच मान ने क्या कहा है, इट इज ऑब्जर्वर इज वर्चुअली ए स्पाई। जासूस है, जो जासूस है, जो जासूसी कर रहा है, वो भी कभी नहीं बताता कि मैं जासूस हूं। ही नेवर रिवील्स हिज आइडेंटिटी एंड सिमिलर इज द केस विद रिसर्चर इन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। और आप देखिए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जो रिसर्चर है वो उस समूह में किस सीमा तक घुल मिल जाता है, इसके बारे में मैं जॉन मैग्स, जिसकी मेथोडोलॉजी में आप किताब पढ़ते हैं, उनकी एक कोटेशन बताना चाहूंगा। इसमें अवलोकनकर्ता के हृदय की धड़कन तथा अवलोकित समूह के व्यक्तियों के हृदय की धड़कन एक हो जाती है। ये तभी अर्थपूर्ण हो सकता है जबकि समूह के सदस्यों के सोचने एवं व्यवहार करने के ढंग से अवलोकनकर्ता का पूर्ण एकीकरण हो जाए। अब आप इमेजिन करिए कि इतना एकीकरण हो जाए, किसका? ऑब्जर्वर का उस समूह के साथ, कि उसके दिल की धड़कन और समूह के दिल की धड़कन एक हो जाए। अब जो आज का रिसर्चर है, उसे तो अगर कहा जाए कि भैया 6 महीने 1 साल तो केवल आपको रेपो एस्टेब्लिश करने में लग जाएगा, वो कहेगा जी 1 साल इसी में लग जाएगा, तो मेरी रिसर्च कितने साल में होगी?
everybody is in a hurry. They don't want to go for longer procedures and always look for shortcuts. इसलिए ऐसे लोगों को कभी भी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब आइए नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पर। अब इतना सही है, मैं आपको बता दूं कि अगर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कोई कर रहा है तो वो जितना गहराई में कर पाएगा, जितना वो माइन्यूट स्टडी कर पाएगा, जितना नेचुरल बिहेवियर की स्टडी कर पाएगा, जितनी वो विश्वसनीय होगी, जितनी अर्थपूर्ण होगी, उतना कोई भी टूल नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि डिफिकल्ट है, वो डिफिकल्ट इसलिए भी है, मैं आपको बताऊं कि बहुत सी सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें पार्टिसिपेशन संभव ही नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जेल इनमेट्स, जो जेलों में कैदी निरुद्ध हैं, उनका अध्ययन करना चाहता है, तो वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से कैसे करेगा? वो तो कैदी नहीं बन सकता। मान लीजिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बिहेवियर, इसकी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से स्टडी करना चाहता है, he cannot become member of parliament. So the question of participant observation does not arise. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल बहुत पुरानी है, कोई होगा 25-30 साल पहले की, और वो उदाहरण आज भी मुझे याद है। इंडियन एक्सप्रेस, उस समय जब मैं 25-30 साल पहले की बात कर रहा हूं, तिहाड़ जेल में, जो इंडिया की सबसे बड़ी जेल है, तिहाड़ जेल में जो बद इंतजामी थी, उसके बारे में बहुत कुछ रिपोर्ट हो रहा था अखबारों में, और अथॉरिटी कहती थी कि नहीं भाई, वहां तो जेल में सब कुछ ठीक है। अब आप देखिए कि एक इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने, एक जर्नलिस्ट ऑफ इंडियन एक्सप्रेस violated the law so that he can be sentenced and sent to तिहाड़ जेल। उसने जानबूझकर ऐसा कानून तोड़ा जिसकी सजा उसे तिहाड़ जेल में भुगतनी पड़े। जब वो बाहर आया तो एक हफ्ता, फॉर कंप्लीट 1 वीक, देयर वाज ए राइट अप इन इंडियन एक्सप्रेस इनसाइड तिहाड़ जेल। इस हेडिंग से इनसाइड तिहाड़ जेल उसने जो अपने अनुभव बताए, पूरे देशवासियों के रोंगटे खड़े हो गए कि मैंने पानी मांगा तो कैसे मुझे ठोकर मार दी गई। जैसे आप देखते हैं इस समय इतनी बुरी हालत, कभी कभी आप न्यूज देखते हैं तो कुछ शहरों में कोरोना वार्ड में बहुत बुरी स्थिति है। आप जानते हैं कि अथॉरिटी कभी नहीं कहेंगे, लेकिन जब वो पिक्चर दिखाते हैं, और पिक्चर दिखाने वाले चैनल कहते हैं कि बड़े दुख भरे मन से हमें ये दिखाना पड़ रहा है, ताकि हो सकता है दिखाने से कुछ सुधार हो जाए। अब आप देखिए, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से वो व्यक्ति जो एक जर्नलिस्ट था, वो उन सब बातों का पता लगा पाया जिसको अथॉरिटीज अब तक निकाल रही थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आपके पास क्या विकल्प है? गो फॉर नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में आपको क्या करना है?
कि आपको उस समूह की सदस्यता प्राप्त नहीं करनी है। आपको केवल क्या करना है, एक मूक दर्शक के रूप में, एक तटस्थ अवलोकनकर्ता के रूप में उस समूह का अवलोकन करना है। तो एक तो जो आपको रेपो बनाने में 6, 7, 8, 10 महीने लगे वो बच गए कि आप एक्सेप्ट हो पाओगे मेंबर या नहीं हो पाओगे, वो प्रॉब्लम खत्म होगी। और दूसरा है कि आप इसमें जो सहभागी अवलोकन के अनेक दोष थे, जब कोई व्यक्ति उस ग्रुप का सदस्य बन जाता है तो हो सकता है उसे कहीं ना कहीं जब रिपोर्ट लिखेगा तो उसे कुछ सिंपैथी उस समूह के प्रति हो जाए जो इस तरह की बायस, पक्षपात के दोष थे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के, वो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से खत्म हो जाएंगे। लेकिन है कि इसमें मैं आपको बता दूं पहले से, जो मैंने आपको एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पंचायती राज की उदाहरण दी थी, अब मैं 2 ऐसी उदाहरण आपको दूंगा जो मेरे स्टूडेंट ने नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से स्टडी करी है। अब एक स्टूडेंट ने जुवेनाइल जेल, जो बच्चा जेल होती है जिसमें जुवेनाइल रखे जाते हैं, जब उसने शुरू में सोचा था कि मुझे उन बच्चों का डिटेल में अध्ययन करना है जो किसी अपराध के कारण जुवेनाइल कोर्ट के निर्णय के अनुसार जेलों में है, बच्चा जेलों में, तब मैंने उसे कहा था उसी समय कि पहले डेटा कलेक्शन के बारे में सोचो। क्या तुम जेल के अंदर जा पाओगे? क्या जेल के अंदर जाकर बच्चों से बात करने की आधिकारिक अनुमति मिल पाएगी? ऐसी अनुमति स्थानीय स्तर से मिलेगी या हेडक्वार्टर से मिलेगी? इसके बारे में सोचो। उसने कहा जी मैं मैनेज कर लूंगा। मैंने कहा ठीक है, अगर मैनेज कर लोगे तो भाई गो हेड। अब आया डेटा कलेक्शन का टाइम। अब उसने एक एप्लीकेशन दी डीएम ऑफिस में, डीएम डिक्लाइंड, इट इज नॉट पॉसिबल टू अलाउ यू इनसाइड दी बच्चा जेल। अब परेशान हो गया, फिर इधर उधर की सिफारिशें लगाई, तो उसे क्या परमिशन मिली कि यू आर अलाउड बट someone from jail authority will be present at a time when you talk to the children। अब आप देखिए, अब उस बच्चे को जिसको आप पूछने जा रहे हैं कभी जेल में कैसा माहौल है, तो जो वो बंदा खड़ा है एक जो जेल अथॉरिटी से संबंधित है, क्या उसके सामने वो बता देगा आपको? इम्पॉसिबल। इसका जो इम्पैक्ट है वो भी मैं बताऊंगा आगे चलकर। कभी नहीं बताएगा आपको, वो तभी बता सकता है अगर अकेला बच्चा और इन्वेस्टिगेटर, कोई अथॉरिटी नहीं है। बाद में उसका इतना रेपो हो गया बच्चा जेल के इंचार्ज से, क्योंकि इंसिडेंटली ही वाज आल्सो PhD in sociology। He recognized the sensitivity of the problem and he allowed। आप देखिए उसकी अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन उसने रिस्क लिया कि ठीक है तुम आ जाया करो और तुम्हें मैं अलाउ कर दूंगा, जब चाहो बच्चों से बात कर लो, जितने घंटे मर्जी बात कर लो, कोई तुम्हारे पास नहीं रहेगा। इट वॉज ओनली सिंपैथेटिक एटीट्यूड ऑफ दैट इंचार्ज ऑफ द बच्चा जेल who himself was PhD in sociology।
अगर वो पीएचडी नहीं होता, सोशियोलॉजी का नहीं होता, कोई एडमिनिस्ट्रेटर होता, तो उसे कभी नहीं मिल सकती थी। इसलिए मैंने शुरू में आपको बताया था, डेटा कलेक्शन के बारे में तभी सोच लीजिए जब आप प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर रहे हैं। अब मैं दूसरी उदाहरण देता हूं। इसी तरह की है एक दूसरी उदाहरण। उसमें क्या हुआ कि एक लड़की कहने लगी कि साहब मैं तो महिला अपराधियों पर अध्ययन करूंगी, और वो ये जो क्राइम मैगजीन आते हैं उसे पढ़ती थी, उसमें कहानियां भी लिखती थी क्राइम से रिलेटेड। कुछ रियल थी, कुछ फिक्टिशियस थी। इमीडिएटली आई आस्क्ड हर कि भाई टॉपिक तो बहुत बढ़िया है, अपराधी महिलाओं की फुल फ्लैश स्टडी बहुत कम हुई है, लेकिन तुम डेटा कैसे कलेक्ट करोगे? हाउ यू विल गेट परमिशन to go inside and meet the women who have been sentenced even life imprisonment? ऐसी महिलाओं से जिन्होंने अपने पति का मर्डर किया है, अपने बच्चों का मर्डर किया है, अपने देवर का मर्डर किया है, अपने ससुर का मर्डर किया है, ऐसी खूंखार महिलाएं जो आजीवन कारावास काट रही हैं जेल में। और आप जानते हो जब जेल लंबी होती है तो देयर इज ए सेपरेट जेल फॉर वुमेन। और आप कैसे कलेक्ट करोगी? उसने भी वही जवाब दिया जो बाल अपराधियों की सिचुएशन में दूसरे रिसर्च स्कॉलर ने दिया था। ही वाज ए मेल रिसर्च स्कॉलर। मैंने कहा सोच लो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कहती नहीं साहब ठीक है। इंसिडेंटली उसने डायरेक्टर जनरल ऑफ जेल्स उससे परमिशन ले ली। और उस समय देखिए मैं इंसिडेंटली कह रहा हूं, डायरेक्टर जनरल ऑफ जेल्स वाज आल्सो ट्रेंड इन सोशियोलॉजी। एक देखिए क्या एक अफिनिटी सिंपैथी क्या हो जाती है। उसने कहा ठीक है हम आपको परमिशन देते हैं। शी वाज गिवन ए लेटर एंड शी यूज्ड टू गो टू जेल। ऐसे जाती थी बिना रोक टोक के, कोई नहीं पूछता था। एंड नोबडी विद हर while talking with female offenders। और आप हैरान रहेंगे उस लड़की ने उन महिला अपराधियों से वो सूचनाएं ले ली जो उन्होंने ना तो कोर्ट में बताई थी ना पुलिस को। व्हाट वाज द रियल मोटिव? जो उन्होंने कुछ नहीं बताया था किसी को। जब वो उससे खुली तो रोते रोते उन्होंने कहानी के रूप में इतना कुछ बताया। एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट वन ऑफ माय रिसर्च स्कॉलर हैज बीन एबल टू ब्रिंग द ट्रुथ प्रोबेबली व्हिच नोबडी कुड इवन थिंक ऑफ। तो आप देखिए ये नॉन पार्टिसिपेंट हो सकता है। नॉन पार्टिसिपेंट के अपने दोष हैं। आप जानते हैं कि उसमें इंटेंसिव स्टडी में इस्तेमाल नहीं हो सकता जो है नॉन पार्टिसिपेंट। और ये अननेचुरल बिहेवियर है। क्यों अननेचुरल बिहेवियर है इसका मैंने पहले भी बताया आपको कि किसी बाहरी व्यक्ति के सामने जो है कोई अपना नेचुरल व्यवहार नहीं करता। हार्थोन इफेक्ट इसे कहते हैं। इसकी बात करूंगा मैं अभी आपके साथ। और इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं होती। कई बार पार्टिसिपेंट नॉन कोऑपरेट कर देते हैं, लेकिन इन सब हर्डल्स को उस लड़की ने तोड़ दिया। इसका अर्थ है कि अगर आप सीरियसली रिसर्च के बारे में सोच रहे हैं, रिसर्च करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप असहभागी अवलोकन से भी वो सूचनाएं ला सकते हैं जो कि
रियल टाइम सिचुएशन से संबंधित हैं। उसमें आपका पैसा भी कम लगा, समय भी कम लगा, किसकी तुलना में? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की तुलना में। अब आइए मिक्सचर ऑफ पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जिसे हम कहते हैं क्वाजी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, अर्ध सहभागी अवलोकन। ये दोनों का समन्वित रूप है। अगर आप पूरी तरह से किसी समूह के सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं होते तो कुछ गतिविधियों में जिनमें आप को समूह सरलता से सम्मिलित कर लेता है उसमें हो जाइए, और बाकियों में नॉन पार्टिसिपेंट की तरह मूक दर्शक के रूप में अपना करिए। तो इसमें दोनों में क्वाजी पार्टिसिपेंट तो एक तरह से बहुत मुश्किल है, लेकिन पार्टिसिपेंट नॉन पार्टिसिपेंट इफ यू आर गोइंग टू यूज, इन दोनों के मेरिट, डीमेरिट्स, पॉसिबिलिटीज, चैलेंजेस, इन सबको आपको सामने रखना है। अब आप देखिएगा कि जो मैं अभी आपको कह रहा था, हार्थोन इफेक्ट। हार्थोन इफेक्ट क्या है? ये मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है कि जब व्यक्ति किसी बाहरी व्यक्ति के सामने अपना व्यवहार करता है तो हो सकता है उसका व्यवहार वो ना हो जो उसका वास्तविक व्यवहार है। हो सकता है वो अपने व्यवहार में चेंज कर ले। क्यों चेंज कर ले? क्योंकि वो इतना सचेत हो गया है कि उसे पता है कि मेरे व्यवहार को कोई देख रहा है। अब आइए केस स्टडी, थोड़ा सा मैं आपको केस स्टडी के भी बारे में बता दूं, ज्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में। केस स्टडीज बहुत आसान है। केस स्टडीज में आप जानते हैं और जानते होंगे, बहुत से जो नहीं जानते हैं, इट इज ए डिटेल्ड इंटेंसिव स्टडी ऑफ ए यूनिट। कौन सी यूनिट? चाहे वो ग्रुप है, चाहे वो एक इंडिविजुअल है, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी फिनोमेना, चाहे वो मेडिकल है, साइकेट्रिक है, साइकोलॉजिकल है या सोशल है, उस एक यूनिट की अगर आप डिटेल्ड स्टडी करना चाहते हैं तो द बेस्ट क्वालिटेटिव टेक्निक अवेलेबल टू यू इज केस स्टडी। केस स्टडी में आपको एक तो इंटरव्यू की सुविधा है, एक आपको अगर आप चाहें जब केस स्टडी कर रहे हैं तो शेड्यूल या क्वेश्चनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप जिसकी केस स्टडी कर रहे हैं वो सामने हैं तो ऑब्जर्वेशन का लाभ भी मिल रहा है। इसका मतलब है 3 दूसरे टूल्स जो व्यक्ति केस स्टडी को अपना रहा है, 3 अलग अलग टूल्स उसकी सहायता कर रहे हैं। इंटरव्यू कर रही है, शेड्यूल या क्वेश्चनर कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है। और अगर केस स्टडी में आपको डायरीज, पर्सनल लेटर, लाइफ हिस्ट्री वगैरह मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी केस स्टडी हो सकती है। और केस स्टडी में देखिए आपको दूसरे सोर्सेस को भी ट्रैप करना होगा। कौन से सोर्सेस? मान लीजिए आप ऐसे बच्चों का अध्ययन कर रहे हैं जो घर से अपने स्कूल जाने के लिए निकलते हैं लेकिन वो स्कूल नहीं पहुंचते, रास्ते में किसी पार्क में अपना बैठते हैं, बैग है उनके पास, यूनिफॉर्म में है, 5 सिगरेट पीते हैं, नार्कोटिक्स या ड्रग एडिक्ट हैं तो कोई ड्रग लेते हैं, और जैसे देखते हैं छुट्टी हो गई और बच्चे स्कूल से वापस आ रहे हैं, वो भी बैग उठाते हैं और घर में आ जाते हैं। इफ यू वांट टू स्टडी व्हाई
some students are behaving like this. वो तब तक ऐसा कर सकते हैं जब तक पकड़े ना जाए, या तो स्कूल से पेरेंट्स को सूचना ना जाए या पेरेंट्स को कोई डाउट ना हो। तो आपको दूसरे सोर्स भी करने पड़ेंगे। आप केवल उनसे बात करके केस स्टडी नहीं कर सकते, आपको उनके साथियों से, क्लासमेट से, उनके परिवारों से, उनके टीचर से भी बात करना पड़ेगी, तभी जाकर आप केस स्टडीज सक्सेसफुली कर सकते हैं। अब मैं आपको एक केस बताता हूं, गढ़वाल विश्वविद्यालय का है। एक लड़की है, उसका लेख मैंने कभी पढ़ा था, नेट में अवेलेबल है, सोशियोलॉजी की स्टूडेंट है और मोस्ट प्रोबेबली शी बिलोंग्स टू मेरठ। वो डाइवोर्स की स्टडी कर रही थी। उसने कहा कि डाइवोर्स की स्टडी के लिए मैं, जो उसकी मेथोडोलॉजी मैंने पढ़ी उस लेख में, एक लेख है केवल, मुझे नहीं पता, वो शी माइट हैव बीन अवार्डेड पीएचडी, उसने थीसिस जमा कर दिया हो। मैं लेख पढ़कर जो अनुमान लगा पाया कि मैं जो फैमिली कोर्ट हैं मेरठ के, मैं वहां से डाइवोर्स के केसेस पिकअप करूंगी। अब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि वो केस स्टडी के लिए सूचनादाता कहां से लाएगी? कोर्ट से। जो व्यक्ति कोर्ट में जिन्होंने एप्लीकेशन दी है डाइवोर्स की, चाहे उनका निर्णय डाइवोर्स का हो चुका है या केस चल रहा है, और आप जानते हो कोर्ट में जो इवन डाइवोर्स के जो केसेस हैं, they go on pending even for 3-4 years. It is not possible to get divorce in India so easily unless both the parties are ready for it. अब उस केस स्टडी में उस लड़की ने जो लिखा मेथोडोलॉजी में कि मैं बहुत ज्यादा केस स्टडी नहीं कर पाई, और उस लेख में उसने केवल 4 केस स्टडी लिखी थी। वो लेख मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा, कि हो सकता है आप डाइवोर्स केस स्टडी और डाइवोर्स के नाम से सर्च करें गूगल पर तो आपको मिल जाए। केवल 4 केस स्टडी करी उसने, और वो भी 4 केस स्टडी दे वर नॉट सफिशिएंट, दे वर नॉट as detailed as they should have been, keeping in view the technique of case study। उसके बेस पर जो उसने कंक्लूजन ड्रा किए, मुझे नहीं लगता कि वो कंक्लूजन उसकी समस्या पर किसी प्रकार का प्रकाश डालने में सहायक थे। अब आप देखिए, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। केस स्टडी के लिए भी आपको अगर सेकेंडरी सोर्सेस का इस्तेमाल करना है, तो कोर्ट में जो केस आ रहे हैं, कोर्ट के जो दस्तावेज हैं, हो सकता है उनमें आपको कोई इंफॉर्मेशन ना मिले। क्या मिलेगी? उनकी उम्र क्या है, वो गांव के हैं कि शहर के हैं। हो सकता है शिक्षा का भी ना उसमें उल्लेख हो, क्योंकि कोर्ट वाले तो वो इंफॉर्मेशन लेंगे जो कोर्ट के लिए जरूरी है। They will not take any information which a researcher needs for his case study. So be careful. अब आइए इन डेप्थ इंटरव्यू। इन डेप्थ इंटरव्यूज बहुत अच्छी टेक्निक है, क्वालिटेटिव। अगर आप की प्रॉब्लम अलो कर रही है क्वालिटेटिव डेटा के लिए, so this in-depth interview is much better than a questionnaire, schedule and even case study। क्योंकि केस स्टडी आप कितनी करेंगे? पूरी रिसर्च में अगर केस स्टडी करना हो तो आप कहें मैं पूरे अपनी पीएचडी में 20 केस स्टडी करूंगी या करूंगा, तो 20 केस स्टडी से तो कुछ नहीं निकलेगा।
अरे जो एक महीने में अगर 1000 केस आ रहे हैं और अगर 6, 7, 8 महीने का पीरियड आपने ले लिया और केसेस हैं उसमें 10,000, तो 10,000 केसेस में 20 केस स्टडी से क्या निकलेगा? इसका मतलब है यू हैव टू सप्लीमेंट द केस स्टडी विद सम अदर टेक्निक, मे बी द क्वेश्चनेयर और इंटरव्यू शेड्यूल। इनसे आप उन केस से, उस रिकॉर्ड से जो कोर्ट में अवेलेबल हैं, उनका पता नोट करिए, उनको मिलिए, या जिस दिन फैमिली कोर्ट बैठी हुई है आप उस फैमिली कोर्ट में जाइए, जो दोनों पार्टी आई हुई हैं, उनसे अगर आप रैपर्ट बना सकें कि मैं ऐसे ऐसे इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा हूं और मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अगर वो दे परमिट यू, तो आप उनसे मिलिए। तो इसका मतलब है कि आपने कोर्ट के रिकॉर्ड के अलावा जो आपको रिसर्च से संबंधित सूचना चाहिए वो आप इकट्ठी कर रहे हैं। अगर आपका टॉपिक कॉम्प्लेक्स है, कैसा कॉम्प्लेक्स है कि आपको पता करना है कि समाज के कौन से ऐसे वर्ग हैं या समाज के किन वर्गों के व्यक्ति कंट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल करते हैं। इसे वेरी सेंसिटिव टॉपिक, वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक। और अगर आप ऐसे इन्वेस्टिगेटर्स का पता लगा पाए तो चाहे वो कम भी होंगे, गो फॉर इन डेप्थ इंटरव्यू। अब है कि मान लीजिए आप स्टडी करना चाहते हैं कि प्रेवलेंस ऑफ अल्कोहलिज्म और ड्रग एडिक्शन अमंग हॉस्टल स्टूडेंट्स। देखिए, सबको पता है कि हॉस्टलों में जो बच्चे रहते हैं उन बच्चों में कहीं ना कहीं, चाहे संगति कुसंगति कुछ कह लीजिए, जितनी भी स्टडी आ रही हैं उनमें ड्रग एडिक्शन अधिक पाया जाता है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं और केवल ड्रग एडिक्ट्स की स्टडी करना चाहते हैं, और इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई ड्रग एडिक्ट्स आर द स्टूडेंट्स हु यूज अल्कोहल, गो फॉर इंटेंसिव इन डेप्थ इंटरव्यूज। इन डेप्थ इंटरव्यूज आपको वहां तक पहुंचा देगी जहां तक आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए जितना रिच एंड न्यू इंसाइट्स आपको इन डेप्थ इंटरव्यू से मिलेगी, जितना फेस टू फेस इंटरेक्शन आप उससे करेंगे, उससे आपको अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव दोनों एस्पेक्ट के बारे में जितना नॉलेज हो जाएगा, उसके बेस पर जो क्वेश्चन आपने अपने अनुसंधान में रेज किए थे, मैं कह सकता हूं दावे से कि आप उनका उत्तर देने में सफल होंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, इन डेप्थ इंटरव्यूज आर कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये नहीं है कि आप आधा घंटा जाएं, 1 घंटा जाएं। इन डेप्थ इंटरव्यूज में कंटिन्यू फॉर डेज टुगेदर। भाई आपको कोई कितना टाइम देगा? आधा घंटा? आज मैं अभी बताऊंगा, टाइम फैक्टर की भी बात करूंगा अभी आगे। एक जब मैं आपको आजकल इंटरनेट सर्वे जो चल रहे हैं उसकी जब बात करूंगा तब आपको टाइम के बारे में भी बताऊंगा। और इसके लिए इन डेप्थ इंटरव्यू के लिए हाईली ट्रेन्ड इंटरव्यूअर चाहिए, हर एक के बस में नहीं है। अगर आप हाईली ट्रेन नहीं है तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गो फॉर इन डेप्थ इंटरव्यू। मैं आपको एक अपना ही उदाहरण देता हूं। मैंने पीएचडी करी है नेपाल पर।
और जिस समय मैंने पीएचडी करी थी उसमें राजतंत्र था नेपाल पर। मैं नेपाल के एजुकेशन सिस्टम पर पीएचडी कर रहा था और हायर एजुकेशन में मैंने वहां के 2 कैंपस सिलेक्ट कर रखे थे जहां से मैं डेटा कलेक्ट करता था और काठमांडू में भी रहता था। उस समय जो मैं डेटा कलेक्ट करता था उसके बेस पर काठमांडू में रहते रहते मैं हाथ से कुछ नोट लिखता था और आप हैरान रहेंगे, वो मेरे नोट्स नेपाल का जो सबसे अच्छा न्यूज़पेपर है द राइजिंग नेपाल, उसमें छपा करते थे। कैन यू थिंक ए रिसर्च स्कॉलर एट वेरी इनिशियल स्टेज, जब उसने पीएचडी भी पता नहीं कितने साल बाद होगी, जो वो देख रहा है, कलेक्ट कर रहा है, एंड नेपाल इज ए फॉरेन कंट्री। वो बात अलग है कि इसके लिए पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं है। बहुत से नेपाली हिंदी जानते हैं और हमारी बात समझ लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो हिंदी से ज्यादा कन्वर्सन नहीं है। अब मेरे दिमाग में आया कि भाई नेपाल के एक्स प्राइम मिनिस्टर, मुझे किसी ने कहा जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था कि द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल इज वेरी कोऑपरेटिव, ए वेरी गुड पर्सन, व्हाई डोंट यू गो एंड मीट हिम। तो मैंने थोड़ा सा सोर्स ढूंढने की कोशिश करी, उसका नंबर वगैरह पता किया, पहुंचा, मैंने एक एप्लीकेशन भेजी उसे कि मैं ऐसे ऐसे इंडिया से हूँ, मेरठ यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ और एजुकेशन सिस्टम में नेपाल पर कर रहा हूँ, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप कल आइए इतने बजे, 4 बजे 5 बजे जो भी टाइम दिया। आई वेंट टू हिम और नेचुरली मेरे पास क्या होता था, एक छोटा सा पैड और एक पेन। उस समय टेप रिकॉर्डर्स वर अवेलेबल बट आई नेवर यूज द टेप रिकॉर्डर। मैं क्या करता था कि अगर सिचुएशन अलोज तो उसी समय नोट कर लेता था, और अगर सिचुएशन डिड नॉट अलो तो वो पैड जो है मैं अपने बैग में रख देता था, पेन में नहीं निकालता था और इनफॉर्मल बात कर लेता था। अब मैं नेपाल के एक्स प्राइम मिनिस्टर, उस समय नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कहीं मैं एजुकेशन एंड पॉलिटी इन नेपाल जो मेरी बुक पब्लिश हुई थी पीएचडी अवार्ड होने के बाद, उसमें कहीं लिखा हुआ है, बट आई कुड नॉट टर्न द पेजेज ऑफ दैट बुक। अब मैंने जैसे ही वो पैड निकाला, अभी मैंने बात शुरू नहीं करी हुई, नमस्ते हुई, बड़े अच्छी तरह से मिले, चाय पी, अभी मैंने अपने टॉपिक के बारे में कोई बात शुरू नहीं की थी। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, बताया कि साहब मैं जब से ये एजुकेशन शुरू हुई है नेपाल में, पहले जो है पैलेस के अंदर स्कूल थे, क्योंकि जो किंग्स थे या उनके दरबारी थे उनको ही शिक्षा अलाउड थी, बाकी जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो नहीं पढ़ लिख सकते थे। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे ही मैंने वो पैड रखा मेज पर, तो वो प्राइम मिनिस्टर बोले, एक्स प्राइम मिनिस्टर, भाई देखो बात ऐसे है, इफ यू वांट टू कोट मी तो मैं कुछ और बात बताऊंगा आपको, इफ यू वांट द रियल थिंग, अगर आपके दिमाग में है कि मैं कोई ऐसी बात उससे पूछूं जिस पर वो मुझे ऐसी सूचना दे पाएगा जिसके बारे में समझता कोई दूसरा नहीं दे पाएगा, तो कहने लगा इस पैड को बंद रखो, अपने बैग में डाल दो, लेट अस बी वेरी इनफॉर्मल। तो इसलिए क्योंकि मैंने कोई रेकॉर्ड एस्टेब्लिश नहीं करा था, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी, मैं केवल जो है एक आपका नाम और वो टाइम और प्लेस जो है वो नोट कर रहा था, मैंने इमीडिएटली रखा। उसने मुझे वो बातें बता दी जो हो सकता है अगर मैं लिखना चाहता तो नहीं बताता।
इसलिए इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन योर इंटरेक्शन कि आप कहाँ तक करेंगे। अब एक फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन होता है, FGD जिसे कहते हैं। अगर आप 6 से 12 व्यक्तियों का एक ग्रुप बना दें और उनमें आप किसी टॉपिक पर चर्चा करें, उनको एक फ्री हैंड, फ्री टाइम दें आप उनको। This technique is also very helpful for qualitative data collection because time is running short. I'm not going to give detail about this focus group discussion. It is available in research methodology books. Now, जो आपने अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी का पहले कोर्स करा होगा कोई, या जो इफ यू आर कन्वर्सेंट, एथनोग्राफी की बहुत बात की जाती है। एथनोग्राफी स्टार्टेड विद एंथ्रोपोलॉजी, और अब क्या है, एंथ्रोपोलॉजी वाले तो एथनोग्राफी छोड़ते जा रहे हैं। क्यों छोड़ते जा रहे हैं? अब हो गया अर्बन एंथ्रोपोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंथ्रोपोलॉजी। पहले एंथ्रोपोलॉजी को लोग मानते थे इट इज ए स्टडी ऑफ प्रिमिटिव पीपल। नो, it is not a study of primitive people. They have a branches like urban anthropology, industrial anthropology. ये पॉपुलर करी एथनोग्राफी। इसमें क्या है कि रियल टाइम इन्वायरमेंट की अगर आपने स्टडी करनी है तो सबसे बढ़िया क्वालिटेटिव टेक्निक है एथनोमेथोडोलॉजी। It is a study of people in their own environment through the use of methods such as participant observation and face-to-face interview. तो इसका मतलब है ये भी एथनोग्राफी बड़ा लंबा प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं इसमें भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व होगा। इसलिए इसे भी आज मैंने आपको बताया एंथ्रोपोलॉजी वाले भी ज्यादा प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। अब आइए, आज लोग बात कर रहे हैं डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी की, आप डिजिटल एथनोग्राफी की। डिजिटल एथनोग्राफिक रिसर्च को किसने संभव बना दिया? स्मार्टफोन ने। स्मार्टफोन वीडियो डायरी जिसमें आप लोड कर सकते हैं, फोटो अपलोड कर सकते हैं, आप उसमें जो है बिना वहां जाए हुए उनको देख सकते हैं वीडियोस को, क्योंकि आपकी फिजिकली प्रेजेंस वहां जरूरत नहीं है। इसलिए डिजिटल एथनोग्राफिक रिसर्च अभी शुरू हुई है, इसको बहुत ज्यादा लोगों ने अभी करा नहीं है, क्योंकि हमारे जहां इस तरह की नई टेक्निक अपनाने में नेचुरली कुछ समय लगता है। अब आप देखिएगा कि मैंने आपको ज्यादातर क्वालिटेटिव जो मेन था वो बता दिया। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च में बहुत जल्दी से बताता हूं आपको। क्वांटिटेटिव रिसर्च में मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि नंबर्स होते हैं, इसमें न्यूमेरिकल डेटा होता है, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन की जाती है, स्ट्रक्चर्ड रिसर्च इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें रिजल्ट्स आर बेस्ड ऑन लार्जर सैंपल साइजेस, सैंपल साइज बहुत लार्ज होता है। इनको आप जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है इसको आप रेप्लिकेट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। इसमें जो है ये ज्यादा केयरफुली डिजाइंड होती है रिसर्च, इसलिए अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च अच्छी तरह से कर लें तो यू कैन इवन प्रेडिक्ट ऑफ द फ्यूचर। मैंने अभी आपको नेपाल की अपनी उदाहरण दी, उस समय राजतंत्र था, किसी को पता नहीं था कि राजतंत्र खत्म हो जाएगा, एक राजा के परिवार का ही लड़का अपने पूरे परिवार को मार देगा और उसके बाद प्रजातंत्र शुरू होगा, प्रजातंत्र फेल हो जाएगा, फिर राजतंत्र आएगा, फिर प्रजातंत्र आएगा। और अभी मैं कुछ महीने पहले, ये कोविड-19 से पहले 6-7 महीने पहले नेपाल में था, एक पार्लियामेंट का ही फंक्शन था जिसमें मुझे बोलना था।
आप हैरान रहेंगे। अब आप अखबारों में पढ़ रहे हैं नेपाल से हमारे संबंध बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि वहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। तो जब मैं पार्लियामेंट में, तो उसमें एक्स पार्लियामेंटेरियन फोरम है, उसमें कोई एक्स मिनिस्टर होते हैं, कुछ प्रेजेंट पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। वो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जिसमें मुझे बोलना था हायर एजुकेशन पर ही। तो आप देखिए उसमें भी मैंने बताया उन्हें कि जब राजतंत्र था, और मैं, आप हैरान रहेंगे, नेपाल जाने का मुझे मौका पीएचडी करने के बाद नहीं मिला था। इट वाज आफ्टर 40 years आई वेंट टू देयर एंड आई वाज वेलकम लाइक ए वीआईपी। मैंने उन्हें बताया कि देखिए मैं इस किताब में, मैंने किताब दिखाई उन्हें कि इस किताब में मैंने लिखा हुआ है कि राजा राजतंत्र कितने भी कठोर प्रतिबंध उच्च शिक्षा पर क्यों ना लगा ले, उस समय पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ने दी जाती थी। क्यों नहीं पढ़ने दी जाती थी कि पॉलिटिकल साइंस में हमारे राइट्स क्या हैं, ह्यूमन राइट्स क्या हैं। अगर जो ज्यादा राइट्स वाइट्स के बारे में जागरूकता हो जाएगी तो सिटीजन कहेंगे कि भैया राजा को गद्दी छोड़। और नेपाल का राजा आप जानते हैं कि पहला राजा है जिसे बिल्कुल पृथ्वी पर भगवान का अवतार मानते थे, और लिविंग गॉडेस भी वहां पर एक लड़की होती है, आज भी है। तो उस किताब में मैंने लिखा था उस समय, जबकि मुझे पता नहीं था कि राजतंत्र का क्या भविष्य होने वाला है, कि इन सब प्रतिबंधों के बावजूद उच्च शिक्षा उन वर्गों तक नीचे की ओर आ रही है जो अब तक नेपाल में इंडिया की तरह उच्च शिक्षा से वंचित रहे हैं। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि सभी अपने अधिकारों को लेकर इस राजतांत्रिक व्यवस्था को बदलने का प्रयास करेंगे। आप देखिए जो मैंने आप 77 में लिखा, लॉन्ग बैक, दैट प्रूव टू बी करेक्ट आफ्टर सो मेनी इयर्स। तो इसका मतलब है कि प्रोडिक्ट भी कर सकते हैं इफ यू हैव डन ए गुड क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब रिसर्च में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आते हैं सर्वेस। सोशल सर्वे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा। सेंसस सर्वे अवेलेबल है हमारे पास, सैंपल सर्वे हैं। और सर्वे में भी आप देखिएगा क्या होता है सर्वे में, कि पब्लिक ओपिनियन सर्वे हैं, मार्केट सर्वे हैं। और अगर आप मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पैनल सर्वे हैं। पैनल सर्वे का मतलब है पैनल स्टडी पर आधारित है। कम्युनिटी सेल्फ सर्वे हैं, क्योंकि सर्वे सबसे पहले कम्युनिटी लाइफ पर शुरू हुए थे। पर्सनल इंटरव्यू सर्वे हैं, मेल क्वेश्चनर सर्वे हैं, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन सर्वे हैं, टेलीफोन सर्वे हैं, अनेक प्रकार के सर्वे हैं। अब बहुत से सर्वे जो सरकारी योजनाओं को सफल बनाने के लिए प्रचार के रूप में किए जाते हैं, वो सर्वे हैं। तो मैं अब सर्वे के बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको। प्रश्नावली और अनुसूची, जो कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल माने जाते हैं, उनके बारे में थोड़ी बात करूं। प्रश्नावली और अनुसूची में आप जानते हैं अंतर कुछ नहीं है। क्वेश्चनर इज ए डिवाइस फॉर स्कोरिंग आंसर टू क्वेश्चंस बाय यूजिंग ए फॉर्म व्हिच द रिस्पोंडेंट फिल्स इन हिमसेल्फ। अगर सूचनादाता उस फॉर्म को जिस पर प्रश्न लिखे हुए हैं उनका उत्तर देने के लिए स्वयं भरता है तो वो प्रश्नावली है। अगर उसी फॉर्म को रिसर्चर अपने पास रखता है और एक एक प्रश्न पूछता है तो द सेम फॉर्म कैन बी कॉल्ड ए शेड्यूल। इसका मतलब है क्वेश्चनर शेड्यूल में कंस्ट्रक्शन में फर्क हो सकता है, लेकिन आप उसे फिलअप कौन कर रहा है? अगर रिस्पोंडेंट फिलअप कर रहा है तो नेचुरली
क्वेश्चनर है, अगर रिसर्चर कर रहा है तो शेड्यूल है। अब स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर हैं, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर में हम ज्यादातर क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड में हम ज्यादातर ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, और कई बार कुछ क्वेश्चन ओपन एंडेड होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है वो ऐसे भी हो सकते हैं जो क्लोज और ओपन एंडेड का मिक्स हो सकते हैं। मैं थोड़े से आपको एक उदाहरण दे दूं। ये उदाहरण मेरे सुपरवाइजर की किताब में से है, प्रोफेसर B.R. चौहान। ही वाज वेरी एमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट। वो थे जरूर रूरल सोशियोलॉजी के, बट उनका जो नॉलेज है वो उस समय इतना था। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट रहे हैं। ही वाज ऑफ इंटरनेशनल फेम। उनकी किताब है एक शेड्यूल कास्ट एंड एजुकेशन। मैं उससे एक उदाहरण दे रहा हूँ। अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चन का देखें तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, अनुसूचित जातियों के कल्याण कार्यक्रमों में आपको भी कोई कठिनाई हुई? यदि हुई तो वह किस प्रकार की, कुछ बता सकेंगे? नीचे 3 लाइनें छोड़ दी जवाब लिखने के लिए। किस सरकारी योजना जो अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए सरकार ने लागू की हैं, क्या उनका लाभ मिलने में आपको कोई कठिनाई हुई है? अगर हुई है तो बताएं। अब बच्चे ने जो बताया उन्होंने बाहर लिख दिया। दिस इज ए ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब आप देखिए, क्या आपको पता है कि सरकार में और गैर सरकारी उद्योग धंधे में कुछ नौकरियां अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित हैं, रिजर्व हैं? उत्तर क्या था? हाँ, नहीं। मतलब आपको पता है कि देयर इज ए रिजर्वेशन फॉर सम पोस्ट इन गवर्नमेंट एंड फॉर सम पोस्ट इन इंडस्ट्रीज। तो दे आर क्लोज एंडेड क्वेश्चन, हाँ और नहीं। अब अगर आप दोनों का मिक्सचर देखते हैं तो क्या उन्होंने पूछा, कभी आपके या आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ ऐसा कोई बुरा बर्ताव इस वजह से तो नहीं हुआ कि आप अनुसूचित जाति के हैं? अब उस सूचनादाता से, उस लड़के से क्या पूछ रहे हैं कि अनुसूचित जाति का स्टूडेंट होने के नाते क्या आपके साथ या आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ कोई बुरा व्यवहार इसलिए तो नहीं हुआ कि आप अनुसूचित जाति के हैं? पहला है आंसर हाँ, नहीं। यदि हाँ तो जैसी आपको याद रही हो मुझे बताइए। मानो उसके साथ नहीं हुआ, उसके किसी दूर के रिश्ते के साथ हुआ है, रिश्तेदार के साथ हुआ है, तो हमने जैसा आपको याद है वैसा बताइए। तो दिस इज ए टाइप ऑफ मिक्स क्वेश्चन। अब आप शेड्यूल में देखेंगे तो आप हैरान रहेंगे। शेड्यूल भी वो नहीं है कि आप इन्वेस्टिगेटर के पास गए, आपने क्वेश्चन पूछा, इन्वेस्टिगेटर ने जो उत्तर दिया, अगर क्लोज एंडेड है तो आपने टिक किया, या ओपन एंडेड है तो जो उसने बताया आपने लिखा। देयर आर सम शेड्यूल्स व्हिच आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्स। इसका मतलब है अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो भी शेड्यूल बना सकते हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स होंगे कि आपको क्या क्या ऑब्जर्व करना है, और जो ऑब्जर्व कर रहे हैं साथ के साथ आप उस शेड्यूल में लिख रहे हैं। देयर आर रेटिंग शेड्यूल्स। अगर आप व्यक्तियों की राय को, उनकी रुचियों को, मनोवृत्तियों को, विचारों को रेट करना चाहते हैं तो वो शेड्यूल अलग है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन का सर्वे कर रहे हो तो इंस्टीट्यूशनल सर्वे शेड्यूल अलग है। इसी तरह से जो डॉक्यूमेंट शेड्यूल, अगर आपको डॉक्यूमेंट से डेटा कलेक्ट करना है, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि डॉक्यूमेंट से मुझे क्या निकालना है,
तो आप इधर उधर ऐसी बातें निकाल लेंगे जो हो सकता है रिसर्च में काम ही ना आए। इसलिए इफ गो फॉर डॉक्यूमेंट शेड्यूल, डॉक्यूमेंट्री शेड्यूल, जो पब्लिक अनुसूची जिसे कहते हैं, उस पर वो बिंदु लिख लीजिए जिन पर आपको डेटा कलेक्ट करना है। अब मैं जो है आपको वैसे तो इनकी कंस्ट्रक्शन में क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो भी बताना चाहता था, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैं बहुत कुछ आपको बता पाऊंगा। इतना जरूर कहना चाहता हूं कि प्रश्नावली में क्योंकि सूचनादाता आपके सामने नहीं है, इसलिए प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो स्पष्ट सरल होने चाहिए, उनका उचित क्रम होना चाहिए, सभी सूचनादाता उनको एक तरह से समझ पाए। जितना ज्यादा एक्यूरेटली आप क्वेश्चनेयर बनाएंगे, जितना उसकी टेस्टिंग प्री टेस्टिंग पहले से कर लेंगे, अगर आपने क्लोज एंडेड उत्तर दिए हैं, उनमें संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं जो आपने सोचा है, उसके अलावा भी अगर कोई है उनको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे प्री टेस्टिंग से, उतना ही आपको डेटा कलेक्शन में कम दिक्कत आएगी। और उसके बाद आकार सीमित होना चाहिए, आकार के बारे में भी बताऊंगा। बहुत लंबा चौड़ा आपने प्रश्नावली बना दी तो कोई उसमें इतना टाइम आपको नहीं देगा, तो हमारे यहाँ तो पढ़े लिखे भी जो है 10 मिनट स्पेयर करने के लिए तैयार नहीं है। और क्यों तैयार नहीं है उसका भी मैं एक कारण आपको अभी बताता हूँ। लैंग्वेज को आपको ध्यान रखना है, और लैंग्वेज ही नहीं, आपको जो है क्रम ठीक रखना है। कोई भ्रमपूर्ण, कठिन, भावात्मक, संवेदनशील, अडंबरपूर्ण या लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछना है। अब लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है? सिगरेट पीना बुरी बात है, क्या आप सिगरेट पीते हैं? अब उत्तर तो आपने ही दे दिया। अगर वो पीता भी है तो आपने प्रश्न क्या बनाया है? सिगरेट पीना बुरी बात है, क्या आप सिगरेट पीते हैं? शराब पीना बुरी बात है, क्या आप शराब पीते हैं? तो अगर पीता भी होगा तो कहता है नहीं, मैं नहीं पीता। क्यों? क्योंकि लीडिंग क्वेश्चन है। इन दिस क्वेश्चन the answer is already reflected. Don't include such questions in your schedule. उसके बाद स्केलिंग का भी प्रयोग होता है। स्केलिंग में मैं कुछ थोड़ा सा बता दूं आपको कि एजुकेशन वाले बहुत से स्केल इस्तेमाल करते हैं। जो एजुकेशन वाले स्केल करते हैं इस्तेमाल, वो टेस्ट हैं। Those tests are available from Agra in printed form. वो कॉपीराइट में आते हैं। अगर कुछ पार्टिसिपेंट एजुकेशन के हैं एंड दे आर प्लानिंग टू यूज दोज टेस्ट, तो मैं उनसे एक हम्बल निवेदन करना चाहूंगा कि कोई ऐसा टेस्ट इस्तेमाल ना करें जो आज से 20-25 साल पहले बनाया गया हो। ना तो उसकी रिलायबिलिटी होगी ना वैलिडिटी होगी, क्योंकि जब वो बनाया गया था तब दैट टेस्ट वाज रिलायबल, दैट टेस्ट वाज वैलिड। मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूं, अगर टीचर जो अध्यापक है वो अपने काम के प्रति कितना प्रतिबद्ध है, अगर इसकी कोई स्केल है और वो स्केल बनाई गई है 20 साल पहले, अब 20 साल और आज में टीचर की कमिटमेंट में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। डोंट यूज। अगर आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको फिर से उसकी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी चेक करनी पड़ेगी। और रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टिपिकल है बहुत। रिलायबिलिटी इसे कहते हैं डिग्री टू विच एन असेसमेंट टूल प्रोड्यूसेस स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। अब ये टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी हो सकती है
ये अक्रॉस आइटम हो सकती है जिसे इंटरनल कंसिस्टेंसी कहते हैं, ये इंटर-रेटर रिलायबिलिटी हो सकती है डिफरेंट जजेस से जो कराते हैं, जिसे अक्रॉस रिसर्चर रिलायबिलिटी कहते हैं। अब आप नहीं कर पाओगे इसे, इसलिए अगर आप टेस्ट बनाने जा रहे हैं, उसे इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको उसकी रिलायबिलिटी चेक करने के मेथड पता नहीं है, डोंट गो फॉर द टेस्ट विच आर वेरी ओल्ड। 2-3 साल कोई पहले टेस्ट बना हो वो तो ठीक है। अब वैलिडिटी आप कैसे चेक करेंगे? वैलिडिटी का मतलब है कि जो स्कोर हैं वो उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं जो आप मापना चाहते हैं कि नहीं। आप जैसे रिलायबिलिटी कई तरह की है, ऐसे वैलिडिटी कई तरह की है। फेस वैलिडिटी है, कांस्टिक वैलिडिटी है, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी है, फॉर्मेटिव वैलिडिटी है, सैंपल वैलिडिटी है। मुझे नहीं लगता कि आप जो टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है उनकी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी माप पाएंगे। इसलिए प्लीज ट्राई टू अवॉइड, अगर बहुत जरूरी हो, मेक वेरी ब्रीफ टेस्ट, उनको खुद आप बनाएं, सीखें उनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी कैसे टेस्ट की जाती है, छोटे सैंपल पर उन्हें पहले लागू करें। अगर आपको लगता है कि भाई सही मैंने टूल बना लिया है तो उनको आज भी आप ज्यादा अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, मैं हमेशा वो एग्जांपल दिया करता हूं। कुछ स्केल्स बनी है पॉलिटिकल एफिकेसी की, इलेक्शन स्टडी में बनी थी जब प्लानिंग कमीशन ने 4th जनरल इलेक्शन में लॉन्ग बैक इलेक्शन स्टडी करना शुरू कराई, क्योंकि हमारे देश में वोटिंग टर्नआउट बहुत कम है, बहुत कम लोग वोट डालने आते हैं। तो उस समय एक कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हुई थी, पॉलिटिकल एफिकेसी। पॉलिटिकल एफिकेसी का अर्थ है कि आप अपने आप को राजनीति में कितना इफेक्टिव मानते हैं। अब उसकी जो स्केल बनी आज से 30-35 साल पहले, प्रोफेसर योगेश हटल जिन्होंने इलेक्शन स्टडी में स्केल इस्तेमाल करी, उन्होंने कुछ प्रश्न ऐसे पूछे हैं जिनसे आज भी आप पॉलिटिकल एफिकेसी मेजर कर सकते हैं। उनकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है। जैसे 2 प्रश्न मैं आपको बताता हूं। एक प्रश्न था कि भाई जो इलेक्शन का परिणाम होने जा रहा है वो तो बादलों के गड़गड़ाने के समान है, मैं क्या कर सकता हूं उसमें? और जैसे बादल गड़गड़ा रहे हैं, आई कैनॉट कंट्रोल ऑन दैट सॉन्ग, सिमिलरली आई कैनॉट कंट्रोल हु इज गोइंग टू लूज एंड विन, सो इट हार्डली मैटर इफ आई गो फॉर वोटिंग और रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग। अब आप देखिए, एक प्रश्न था कि भाई हार जीत तो लाखों मतों से होगी। आप जानते हैं बहुत से जो कैंडिडेट हैं वो 3, 4, 5 लाख से भी जीतते हैं बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी। तो हार जीत का मार्जिन लाखों में है, तो मेरे वोट डालने से ना डालने से क्या फर्क पड़ेगा? जाऊंगा, डालूंगा तो भी मेरा वोट बेकार हो गया, क्योंकि जिसने हारना था उसने हारना ही है, क्योंकि मेरे वोट की वजह से थोड़ा आ रहा है। These type of questions still are relevant। इसलिए अगर पॉलिटिकल एफिकेसी की अटल की स्केल आज कोई इस्तेमाल करता है तो मुझे लगता है शायद उसे रिलायबिलिटी दोबारा से चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा हैं, मैंने आपको बताया कास्ट इफेक्टिव है। और अगर आप कोई पेड सर्विस पेड, आपको पता है आजकल आपको अगर आपको जरूरत है कि भाई मेरे टॉपिक पर किन लोगों ने रिसर्च करी है, गो टू ICSSR
डेटा आर्काइव, अपनी प्रॉब्लम बताइए, एक फॉर्म फिलअप करिए, देयर आर फिक्स चार्जेस, वो कुछ पैसे लेंगे और 5-7 दिन बाद आपको एक डिटेल्ड लिस्ट भेज देंगे कि हमारी लाइब्रेरी में इतने आर्टिकल, इतनी पुस्तकें इस टॉपिक पर अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ देख सकते हैं। तो अगर पेड सर्विस है, आपको कुछ पैसे देने भी पड़े तो भी 300-400, 500, 700, 800, ज्यादा 1000 होंगे, कास्ट बहुत कम होगी प्राइमरी डेटा की तुलना में। अब थोड़ा सा मैं एक बार आपको लास्ट में बता दूं, आजकल जो रिसर्च के नए टूल आ गए हैं, ऑनलाइन सर्वेस। अब ऑनलाइन सर्वे का एक मशरूम ग्रोथ इस समय देखने को मिल रहा है। कोविड-19 जो कोरोना वायरस है, इसने एजुकेशन में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, मेडिकल साइंस में इतना जबरदस्त ऑनलाइन सर्वे को बढ़ावा दिया है कि आप अगर सर्फेस करेंगे गूगल पर, आपको हजारों आर्टिकल इन पर मिलेंगे कि लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इससे क्या प्रॉब्लम हो रही हैं। और मैं आपको एक किताब बताता हूं, कूपर, COUPER, कूपर, MP कूपर। इन्होंने पहले तो 2000 में एक आर्टिकल लिखा था वेब सर्वे पर, और उसके बाद 2008 में इनकी पूरी किताब आई, डिजाइनिंग इफेक्टिव वेब सर्वेस। आप हैरान रहेंगे 2008 में कूपर ने क्या लिखा था। उन्होंने कहा कि देयर इज स्पेकुलेशन दैट वेब सर्वेस will replace traditional methods of data collection। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ सालों में जितने ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन के, जो मैंने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव आपको बताए हैं, उनकी जगह क्या ले लेगा, वेब बेस्ड सर्वे ले लेंगे। वेब बेस्ड सर्वे में आप देखिए, इंटरटेनमेंट सर्वे पहले से ही होते थे, अनरिस्ट्रिक्टेड सेल्फ सिलेक्टेड सर्वे ये इस समय सबसे ज्यादा हो रहे हैं। आप एक क्वेश्चनर बनाइए, उस क्वेश्चनर को गूगल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। इफ यू आर मेंबर ऑफ सम ग्रुप्स, उस ग्रुप में उस क्वेश्चनर को लोड कर दीजिए, और अगर उस ग्रुप के लोग कोऑपरेटिव हैं तो इतनी जल्दी आपको वो गूगल फॉर्म वापस मिल जाएगा। और वापस ही नहीं मिल जाएगा, उसके सारे रिस्पॉन्सेस एक्सेल शीट पर अपने आप चढ़ते रहेंगे। जब आप पेपर से डेटा कलेक्ट करते थे तो सारा डेटा ट्रांसफॉर्म करना पड़ता था हमें गूगल एक्सेल शीट पर। अब गूगल फॉर्म से पूरा डेटा कहाँ आ रहा है, सीधा आ रहा है एक्सेल पर। एक्सेल से आप चार्ट बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, मीन निकाल लीजिए, मोड निकाल लीजिए। तो ये सारे सर्वे ऑनलाइन जो हो रहे हैं गूगल फॉर्म में, ये इतने आसान हो गए हैं कि प्रॉब्ली इट इज नाउ, मुझे लगता है, मुझे नहीं पता कोविड पोस्ट कोविड पीरियड में इनकी क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, लेकिन दे हैव 100% रिप्लेस्ड द ट्रेडिशनल मेथड। क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड तो इस समय आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। उसमें देखिए, आप ईमेल सर्वे हैं, अगर आपको ईमेल एक्सेसिबल है, फॉरेन कंट्री में ऐसे पॉसिबल है। अब बहुत सी कंपनियां हैं जो अपने कस्टमर की ईमेल को सुरक्षित रखती हैं, वो सेटिस्फैक्शन सर्वे वगैरह करती रहती हैं। SMS सर्वे हैं, SMS भेजते हैं कि हम ऐसा सर्वे कर रहे हैं और आपसे आशा करते हैं कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करिए। अब QR कोड इंटीग्रेशन सर्वे भी आ गए। आपको पता है कंप्यूटर में
QR कोड रीडर होता है, जरा सा आपको कोड भेजते हैं, वो क्वेश्चन है, आप उसको कोड को रीड करिए, आपको सारा सर्वे के बारे में पता चल जाएगा। सोशल मीडिया पर जो सर्वे हो रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो आपने गूगल फॉर्म है वो व्हाट्सएप में उससे भेज दिया, वो सारे जो है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद आप हैरान रहेंगे कि इनका रिस्पांस रेट इतना हाई है। मैं 2 स्टडी आपको बताता हूँ, एक दोनों ही हमने करी है। एक स्टडी हमने कोविड-19 में जो लॉकडाउन हुआ है, पहली 3 स्टेजेज में, उसका व्यक्तियों के व्यवहार पर, परिवार पर और समाज पर क्या असर हुआ, इसका अध्ययन किया हमने मई में। गूगल फॉर्म बनाया हमने एक क्वेश्चनर के रूप में। इत्तेफाक से वो गूगल फॉर्म, क्योंकि हमने 3 चीजें पता करनी थी कि लॉकडाउन का क्या असर हुआ, लॉकडाउन का इंडिविजुअल बिहेवियर पर क्या हुआ, फैमिली पर क्या हुआ, सोसाइटी पर क्या हुआ। इसलिए थोड़ा सा लंबा था, लेकिन 1 हफ्ते में 750 रिस्पॉन्सेस हमें मिल गए। एक दूसरा सर्वे था जो हमने पेरेंट्स से करा, हमारी एक स्टूडेंट ने करा, जिसके रिस्पॉन्डेंट कौन थे? पेरेंट्स, जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे गार्जियन हों, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हों। उन्होंने 1 हफ्ते में उस लड़की के, जो हमारी स्टूडेंट है, उसके हस्बैंड हैपन टू बी ए रिपोर्टर, वो एक समाचार एजेंसी से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो ज्यादा ग्रुप्स के मेंबर हैं। उन्होंने 1 हफ्ते में, आप हैरान रहेंगे, 10,000 रिस्पॉन्सेज इकट्ठे कर लिए। नो टेक्निक इन द वर्ल्ड इज हेल्पफुल टू गेट डेटा फ्रॉम 10,000 रिस्पॉन्डेंट्स विद इन ए वीक, एंड दैट टू विद नो कॉस्ट। लगा क्या उनका? भाई, एक छोटा सा क्वेश्चनर बनाया कि क्या स्कूल गारंटी लेंगे कि जो बस पर बच्चे ले जा रहे हैं वो सेफ है? क्या स्कूल में जो क्लासेस हैं वो सेफ हैं? क्या स्कूल ऐसी अंडरटेकिंग देगा, जैसे वो पिकनिक पर ले जाते हैं, पेरेंट्स से लेते हैं कि अगर कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं हैं? क्या स्कूल ऐसी अंडरटेकिंग माँ बाप को देगा कि अगर कोरोना वायरस बच्चे को स्कूल में होता है तो स्कूल जिम्मेदार होगा? 10,000 रिस्पॉन्सेस। तो मैं अब मुझे लग रहा है कि मैंने जरूरत से ज़्यादा टाइम ले लिया है। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि अगला सेशन वैलिडिक्टरी भी होना है शुरू। मैंने बहुत सी चीज़ें कट शार्ट कर दी हैं, कभी समय मिलेगा तो मैं दोबारा इसे बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित हुए हो। Thank you very much, sir. Because the time is not permitting us and we have to close the recording of the first session and start with the recording and other formalities of the second session. We have already been joined by Professor M.K. Vajpayee ji, Honorable Vice Chancellor, Capital University, Jharkhand. We'll just break for 5-6 minutes and then start up with the valedictory session. Thank you. Good afternoon, Honorable Sir. We'll just take 10 minutes, sir. Okay, fine. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir.